So we were studying solutions of wave equation with the initial condition. We have studied D'Alembert principle. Now we study waves on half line. Earlier we have studied on full interval. With one initial condition, when t equals to 0, you know the solution. So the method is widely used to solve the wave and heat equation. This is called reflections. So what do you mean reflection? So earlier we had solution of wave equation on full interval, and now we will have solution of wave, let us say on half line 0 to infinity. And in next chapter we will study these equations on finite interval, let us say minus L to L. So firstly we study the solution on half line. So to solve these problems, we reduce the problem to an odd problem. So for this, we use the concept of odd functions, and our method uses the idea of an odd function its graph. You know what is odd, called odd function. So by definition a function is odd. A function, let us say phi x is odd if phi of minus x equal to minus of phi x, and if you fit x equal to 0 into this definition, so you got phi 0 equals to 0 for any odd functions. So its graph will be like this. So and negative side, it's mirror image. So same same thing here and same thing here. So you just have mirror image on the right hand side, and at 0 this is 0. So its graph is symmetric with origin about the origin. So method is not new. We have earlier studied D'Alembert's principle for wave equation, that you know the solution formula. What was the solution? We and you should remember that D'Alembert formula that we have written earlier, that is solution uxt 1 by 2 1 by 2 phi x plus ct and phi x minus ct,
and 1 by 2c x minus ct to x plus ct psi s ds. So what is phi? This is initial displacement. And what is psi? This is initial velocity. Okay, ut x0 when t equals to 0. So that was solution of initial value problem. So you know the solution at t equals to 0. And this is the solution for Hall all real line. So that was the solution for whole real line. So now we study wave on half line, and this is the new article. So waves on the half line. So you consider wave equation with Dirichlet boundary condition. And with the initial condition. So we have initial boundary condition. So equation is VTT minus C square VXX equals 0. With initial condition, initial displacement, and this is just initial velocity. Okay, for x positive, and boundary condition when x equals to 0. So we already studied two types of boundary condition in OD, Dirichlet and Newman. ठीक है, न्यूमन में डेरिवेटिव के सेंस में है और ये सिंपल. अगर ये वी एक्स होता है यहाँ पे तो फिर वो न्यूमन कंडीशन है. अगर सिंपल वी है, अननोन है, तो Dirichlet बाउंड्री कंडीशन है. So for the this is wave equation. You can imagine that this is an example of vibrating string. Okay, and boundary condition that when when x equals to 0. Okay, so जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 0 है. ठीक है, तो एक एंड है ये 0. There is no displacement, so you can think that this end is fixed. Okay, so end of this string at x equals to 0 held fixed. So for the vibrating string, the boundary condition V0t equals to 0 means that the end of the string at x equals to 0 is held fixed. So अब हमारे पास पूरी लाइन के लिए तो फार्मूला है ये
ठीक है। और आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि आपने लेट अस से कि ये पूरी लाइन के लिए है और आप इसको कट कर दो तो हाफ लाइन के लिए मिल जाएगा, बट ऐसा इसमें है ही नहीं। आप लिमिट देखो, लिमिट x माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी है। ठीक है, तो जो बाउंड्री है वो लिमिट के अंदर है ही नहीं। सो वी डोंट हैव, लेट अस से कि अगर यहाँ पे ये होता कि ये चीज फुल लाइन के लिए है, हाफ लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे या जीरो टू इन्फिनिटी कर देंगे। बट वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ सिचुएशन, सो वी हैव 2 पॉइंट्स। तो सोल्यूशन ये लोकली डिफाइन है, वी अर्लियर डिफाइन what is called domain of dependence, what is called domain of influence. So you, in other words, you can say that solution at point xt, कोई point xt है तो ये point x minus ct है, x plus ct है. So this integral depend on this limit x minus ct to x plus ct, and value of phi only depend on these 2 points. So this triangular region is called uh, domain of dependence for any point xt. So displacement at xt depend on local information. Okay, so you cannot just cut the integral. So we we will use method of reflection to write the solution by using odd extension of functions. So we reduce the above wave equation, or you can say Dirichlet problem. Dirichlet problem to whole line by the method of reflection. Reflection means that just take mirror image कि आप solution लिख लो, पूरी लाइन पे लिख लो और उसका रिस्ट्रिक्शन ऐसे लगाओ कि आपको हाफ लाइन पे solution मिल जाए जो that is required. Okay, so use the Dirichlet formula to write solution on full line, then restrict that solution for half line. So this idea that we will use many times for heat equation and wave equation. So the idea is to extend the initial data. Initial data means phi and psi to whole real line, so that the boundary condition automatically is automatically satisfied. अब बाउंड्री फोर्स क्या कर रहा है कि बाउंड्री कंडीशन क्या है कि इस पे जीरो है, तो तब अभी भी मैंने बोला था ऑड फंक्शन कैसे होते हैं, इधर ग्राफ है, जीरो पे जीरो बन जाएगा, इधर उसका मिरर इमेज है. ओके, जीरो पे वो जीरो है. एंड आल्सो वी हैव बाउंड्री कंडीशन, solution should be 0 at 0. When x equal to 0, this is 0. So that the boundary condition is automatically satisfied. So for this we write order extension. For this we take odd extensions. दोनों इनिशियल डाटा का लिखना है ऑड एक्सटेंशन फाई ऑड. This is phi of x when x is positive, 0 पे 0 है, and minus of phi of x when x is negative.
and psi odd psi of x. अच्छा, नेगेटिव साइड तो हम रिफ्लेक्ट कर ही रहे हैं, माइनस ऑफ माइनस फाइव एक्स जीरो, ये नेगेटिव वाला पार्ट, x पॉजिटिव, x equals to 0 and x is negative. So now we had original problem. Say this is first. You have phi odd and psi odd. So they are defined for whole the real line. So we consider the IVP on whole line with new data. So UTT minus C square UXX So this is my new IVP. Since the initial data are odd function, so we know the solution of initial value problem. अगर data odd है, we can prove that since the initial data of IVP are odd, so the solution of the IVP will also be odd. Will also be. So this is an exercise you can verify. If initial data is odd, so is U is odd. We will discuss in exercises. And hence, U0t equals to 0 for all t positive, and then define restriction of U, section of U to x positive is sorry, so this U is defined for whole line. So what is V? हमने क्या लिखा कि एक वेरिएबल u है ना, u में नया इक्वेशन डिफाइन कर लिया, इनको जस्ट एक्सटेंड कर दो फाई और साई को और एक्सटेंशन लेके, मतलब जैसा भी फाई फंक्शन होगा उसको और एक्सटेंशन लेके डिफाइन कर दो, आगे साई भी जो फंक्शन होगा उनको और एक्सटेंशन लेके डिफाइन कर दो फुल लाइन पे। तो u क्या है? फुल लाइन पे, और जीरो पे वो जीरो है, तो u को रिस्ट्रिक्ट करोगे हाफ लाइन पे, दैट विल बी ओवर v. Okay, so this is restriction for x positive. So we automatically have v0t और u0t, जीरो पे ये जीरो है, so boundary condition is automatically satisfied.
ओके, सो यू कैन से जो जो v है आपका, वो v किसका सोल्यूशन है? v v v किसको सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को? x पॉजिटिव के लिए, जो हमने लिखा है, ठीक है। और जो u है वो किस पे सोल्यूशन है? फॉर होल रियल लाइन। सो u का फार्मूला आपको पता है, यू नो डी लंबर्ट फॉर u, so we will write solution for u, then we will restrict that solution for x positive, that will be the solution of our problem. So we just take the restriction. तो अब डी लंबर्ट फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन लिख देंगे। सो यूजिंग डी लंबर्ट प्रिंसिपल, phi odd x plus ct, डी लंबर्ट प्रिंसिपल और रिस्ट्रिक्शन लेके लिखना है कि इस साइड वाला सॉल्यूशन जो क्या होगा, phi odd x minus ct, दिस इज जनरल फार्मूला, बट हम आगे देखेंगे कि फॉर्म, पर्टिकुलर फॉर्म क्या लेगा, x प्लस सी टी साई ऑड एस डी एस। सो सो नाउ पॉजिटिव साइड रखना है आपने, x पॉजिटिव, t तो आपका पॉजिटिव है ही, सो देन x प्लस सी टी, मतलब ये चीज देखना है हमने, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, हमें देखना है x माइनस सी टी कहीं नेगेटिव साइड तो नहीं जा रहा, क्योंकि क्योंकि सोल्यूशन जो आप डिफाइन कर रहे हो सिर्फ इस साइड, पॉजिटिव वाली साइड, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यू है वो आपने पॉजिटिव वाली साइड लेनी है, नेगेटिव साइड यू विल इग्नोर। सो x प्लस सी टी इज पॉजिटिव, एंड देन अब पॉजिटिव साइड है तो फाई ऑड जो x प्लस सी टी है वो तो फाई x प्लस सी टी ही होगा, ठीक है। एंड इफ इन एडिशन x minus ct is positive, then phi odd x minus ct, देखो पॉजिटिव वाली टर्म तो कोई प्रॉब्लम करेगा नहीं, x पॉजिटिव है, t पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है, सो दिस गाई इज ऑन पॉजिटिव साइड। इसका प्रॉब्लम है, ये पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, नेगेटिव साइड भी हो सकता है, तो एक मैंने पॉसिबिलिटी लिखा कि ये पॉजिटिव साइड हो तो क्या होगा, और नेगेटिव साइड होगा तो फिर क्या होगा। सो phi odd will be phi x minus ct, and if I take s जो वेरिएबल है, डमी वेरिएबल, x minus ct to x plus ct, तो जो साई ऑड होगा इन इन केसेस में, मतलब अगर अगर ये दोनों पॉजिटिव साइड हैं तो साई ऑड क्या बन जाएगा, साई बन जाएगा जो आपका ओरिजिनल है। तो इस केस में होगा क्या, x माइनस सी टी पॉजिटिव, और यू कैन से x ग्रेटर देन सी टी, ठीक है। देन वी हैव अल्टीमेटली, तो कंक्लूजन तो यही बना, x प्लस सी टी पॉजिटिव हो, चलो ये ठीक है, ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो दिस इज बाय डेफिनेशन, ये तो रहना ही है, इसका प्रॉब्लम था। तो इसमें क्या होगा, x माइनस सी टी इज पॉजिटिव, देन x ग्रेटर देन सी टी, देन वी हैव वी एक्स टी इक्वल्स टू 1/2 phi x plus ct plus phi x minus ct plus 1/2 c x minus ct to x plus ct psi s ds।
one case. So if you have this situation, solution is given by this formula. This is also called D'Alembert formula. अब दूसरी पॉसिबिलिटी, ठीक है, इसको ही देखना है हमने, सिर्फ इसको ही, x माइनस सी टी, दैट so that value will decide. So second possibility I am writing. So if रखना तो इनको पॉजिटिव साइड ही है. So x minus ct will be negative. Then v of xt equals to 1 by 2 phi x plus ct phi. अच्छा, ऑड एक्सटेंशन में तुम नेगेटिव आएगा ना, सॉरी ये लगा देना, इसका इधर लेके जाना है ना, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना 2 और 3 में, ऑड एक्सटेंशन है ना. तो अगर ये नेगेटिव होगा, ठीक है, तो फाई जो सी टी माइनस एक्स है वो माइनस ऑफ फाई सी टी माइनस एक्स बन जाएगा, प्लस 1 बाई 2 सी. फिर हम इंटीग्रल को सेपरेट कर लेंगे x माइनस सी टी टू 0, जिसमें मतलब नीचे वाली साइड है तो ऑड है ये, तो साई ऑफ ये बन जाएगा नेगेटिव, और 0 से लेके x प्लस सी टी तक ये बन जाएगा. So making transformation s to minus s in first integral, we get v of xt equals to 1 by 2 phi x plus ct minus phi ct minus x plus 1 by 2 c. इसको आप लिख सकते हो 1 by 2 c दोनों के साथ है, सो पुट ए बिग ब्रैकेट ही. तो फर्स्ट को आप लिख सकते हो सी टी माइनस एक्स टू 0, देन 0 टू x प्लस सी टी, और इनको कंबाइन करके आप लिख सकते हो 1 बाई 2 फाइव एक्स प्लस सी टी माइनस 5 सी टी माइनस एक्स प्लस 1 बाई 2 सी सी टी माइनस एक्स टू एक्स प्लस सी टी. अल्टीमेटली आप यहां से भी देख सकते हो, अगर अगर x माइनस सी टी नेगेटिव है तो सी टी माइनस एक्स पॉजिटिव होगा. सो s को माइनस s करोगे तो ये ठीक लिखा है मैंने, को चेक करना. If you fit s equals to minus t, then ds will be minus dt. So limit will be reversed. Okay, ct minus x to 0 minus plus, ठीक है. मतलब फाइनल फार्मूला क्या बना कि अब दोनों केसेस को कंबाइन करोगे, अगर पॉजिटिव साइड है तो x प्लस सी टी, और फिर तो सेम फार्मूला है पहले वाला जो था, x प्लस सी टी एक्स माइनस सी टी, सेम इंटीग्रल. और अगर नेगेटिव साइड है तो यहाँ पे इसको क्या करो, इसको सी टी माइनस एक्स कर दो, या माइनस मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे सी टी माइनस एक्स कर दो. So finally combining two formulas, so we have the solution. To solve the problem, you have to memorize this formula. Phi x plus ct
प्लस 5x माइनस सी टी प्लस 1/2c x minus ct to x plus ct psi of s ds for x greater than ct. And second, if you have second possibility ct minus x2 x plus ct, या तो x ct से बड़ा हो या ct x से बड़ा हो. In both possibility you need to say on left side, don't. तो मतलब हमने जो करेक्टरिस्टिक्स बनाया था कि जो लोकल इंफॉर्मेशन है वो आपने सिर्फ लेफ्ट साइड में लिखनी है. सो दिस इज जस्ट सिमिलर टू D'Alembert principle. Also you may have the same problem with the Newman boundary condition. अब न्यूमन में डेरिवेटिव होगा. अच्छा, एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है. अगर फंक्शन इवन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? ऑड होगा, मतलब ऑड फंक्शन बन जाएगा. मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर ऑड फंक्शन बन जाएगा डेरिवेटिव. अब बोला भूमिका. सर फंक्शन इवन है तो उसका डेरिवेटिव ऑड फंक्शन बन जाएगा. कैसे? जैसे अगर कोई एग्जांपल से देख लेते हैं, अगर कोई पावर इवन है तो उसकी डेरिवेटिव करके ऑड हो जाएगी ना. जैसे कॉस है, इवन है, कॉस इवन है, इसका डेरिवेटिव साइन ऑड होगा. तो वो तो एग्जांपल होगा. तो हर एक के लिए ट्रू है ये. एफ एक्स इवन है तो इवन की डेफिनेशन क्या होगी? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. डेरिवेटिव करो. डेरिवेटिव ने नेगेटिव को किल कर दिया ना, मतलब डेरिवेटिव से नेगेटिव बाहर आ गया तो ये ऑड बन जाएगा. तो अब आपके पास सिचुएशन वही है कि जो न्यूमन कंडीशन होगा आप उसको करना कंप्लीट. अगर आपके पास न्यूमन कंडीशंस हैं, सो सेम वे यू हैव वेव इक्वेशन. सेम सिचुएशन जो पहले था, हाफ लाइन पे है. इनिशियल कंडीशन तो सेम है, फाई ऑफ एक्स एंड वी टी. ठीक है जी. और ये है न्यूमन कंडीशन. सो वी एक्स, तो वहां पे पहले तो वी क्या होता है वेव इक्वेशन में? डिस्प्लेसमेंट होता है. अब डेरिवेटिव के सेंस में है. तो पहले वाली सिचुएशन ही है. पहले तो आपने जस्ट ऑड एक्सटेंशन लिखा था. अब फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है ना. अब इनको मिलाना भी है ना जीरो पे, ये सेटिस्फाई भी तो होना चाहिए. तो अगर आप इवन एक्सटेंशन लेते हो, अगर फंक्शन की इवन एक्सटेंशन लेते हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जो भी डेरिवेटिव होगा इनका फाई और साई के, फाई डैश साई डैश जो भी होंगे वो अपने आप ऑड बन जाएंगे. और ऑड बनेंगे तो वो जीरो पे जीरो हो जाएंगे अपने आप.
ठीक है, तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, सो नाउ तो ये जो मेथड है ये है इवन एक्सटेंशन का। मेथड सेम है, मेथड इज नोन एज मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन। सो व्हाट वी डू, we use method of reflection with even extensions. Reflection with even extensions to reduce the initial value problem for half line. Sorry for so we reduce the problem on full line, then we take restriction. तो even extension कैसे define करोगे? Firstly write even extension, define even extension of both functions of initial data. So phi even of phi x ये जीरो पे जीरो नहीं बनते हैं ना। कौन सी इमेज होती है ये? वो तो ऐसे था ना मिरर में, ये कैसे होगा? इवन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है, या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग या वाई एक्सिस के लॉन्ग। जैसे आप साइन का ग्राफ लेते हो, साइन तो ऑड है, कॉस का कैसा होता है? जैसा ऐसा ऐसा ही, ये इवन वाला है, जैसा इधर वैसा ही इधर, ठीक है। साइन कॉस का ध्यान रख लो, कॉस इस लाइन के अबाउट ऐसा, इधर ही ऐसा इधर ही ऐसा। So this is, and then take psi even, psi x, psi of minus x, so we consider the IVP on the whole line in variable u, utt minus c square ux x equals to 0, ux 0 equals to phi even, and ut x 0 equals to psi even x. So clearly, so solution u to initial value problem will be even, ये हम डिस्कस करेंगे कल कि अगर डाटा इवन हो तो सॉल्यूशन भी इवन होगा, डाटा ऑड हो तो सॉल्यूशन भी ऑड होगा। So solution of will be even in x, and since the derivative of an even function is odd, so the derivative है ux, that will be odd in x, and hence ux 0t equals to 0. So now similar to previous situation, we consider two cases separately. Hence this will be 0, so we take restriction
अब हमने v हमने क्या लिखा था, u का रिस्ट्रिक्शन on half line using D'Alembert principle. So you have solution 1 by 2 phi even x plus ct plus phi even x minus ct plus 1 by 2 c x minus ct to x plus ct psi even s ds. Again, two cases you need to consider. Similar to previous problem, x greater than ct and x less than ct. ये आप करके लाना, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ. vxt will be phi x plus ct. पहला तो सेम केस है, अगर x ct से बड़ा है सो नो चेंज, सो जस्ट सेम सोल्यूशन फार्मूला x minus ct to x plus ct when x greater than ct. सेकंड फार्मूला, अब इवन में तो सेम ही रहना है, इसमें ct माइनस x हो जाएगा बस. जीरो से लेके ct माइनस x तक ये स्प्लिट होगा जीरो से लेके x प्लस ct तक psi s ds, and this is valid for when x less than ct. ये कट हो रहा है इंटीग्रल जीरो से लेके ct माइनस x तक, और ये सेपरेट जीरो से लेके x प्लस ct तक. जो भी कॉमन आएगा आप लिख सकते हो उनको. So in that way you can restrict over solution for half line. Okay, any doubt? I think there are many doubts. सर जिस दिन वो एनर्जी ऑफ वेव इक्वेशन वाला किया था, उससे पहले जो एक क्वेश्चन किया था बॉक्स टाइप इक्वेशन का सॉल्यूशन एनालाइज किया था, उसमें वो इंटरवल जो सॉल्यूशन लिखे थे डिफरेंट केसेस के लिए, उसमें वो इंटरवल कैसे लिए थे? कौन सा एग्जांपल दे रहे हो? एनर्जी ऑफ फॉर वेव इक्वेशन से पहले ये एनर्जी वाला था. हाँ, इससे जस्ट पहले वो बॉक्स टाइप इक्वेशन के सॉल्यूशन को एनालाइज. यस, ये जो इंटरवल लिखे हैं जैसे जीरो से माइनस ए से x प्लस ct, ये पॉसिबिलिटी लिखी है. देखो x माइनस सी टी से मतलब x माइनस सी टी से लेके x माइनस सी टी से लेके अपने x प्लस सी टी तक जाते हैं ना हम उसमें, ठीक है. और इसने एक चीज रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि जो डाटा है आपका माइनस ए और ए के बीच में ही नॉन जीरो है. तो जो वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अब x माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी से छोटा रहेगा, तो पहली पॉसिबिलिटी में मैंने क्या लिखा कि ये दोनों माइनस ए के लेफ्ट साइड इस साइड में हो, और जो लास्ट वाली पॉसिबिलिटी है वो इसका जस्ट अपोजिट है कि डाटा आपका यहाँ पे नॉन जीरो है, या तो दोनों इधर हो या दोनों इधर हो. ये दो पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है. और बाकी जो पॉसिबिलिटी लिखी है मैंने, लेट अस से कि सेकंड लिखा है. अब x माइनस सी टी है ना, ये नेगेटिव साइड हो सकता है, तो माइनस ए से छोटा हो. देखो इनसे बना रखी है पॉसिबिलिटी, x माइनस सी टी माइनस ए से, और x प्लस सी टी को एक बार आप इधर रख लो, a और इनके बीच में रख लो, और एक बार इधर कर दो इसको, ठीक है. x माइनस सी टी को फिक्स रखो. सेकंड और थर्ड में क्या किया है कि माइनस ए है, x माइनस सी टी इधर हो. अब x प्लस सी टी दोनों साइड हो सकता है ना, a के आगे हो सकता है, a के पीछे हो सकता है. ये दोनों पॉसिबिलिटी लिखी है. फिर इसको बदल दो. अब ये भी नेगेटिव वाली साइड है, ये भी नेगेटिव, तो अब इनको बदल दो आपस में. अगली पॉसिबिलिटी में x माइनस सी टी और माइनस ए को इधर कर दो लेफ्ट में, ठीक है. तो x माइनस सी टी
एक्स प्लस फिफ्टी इससे बड़ा होगा, एक्स प्लस फिफ्टी को यहाँ रखो चाहे यहाँ, दो पॉसिबिलिटी बन गई, ए के लेफ्ट और राइट में कर दो, ये दो पॉसिबिलिटी बन गई, तो ये टोटल 6 पॉसिबिलिटी बन गई। सर जैसे सॉल्यूशन में जो इंटीग्रल होता है साई का, वो x माइनस, सर फाइनल सॉल्यूशन में जो इंटीग्रेशन होती है वो x माइनस सी टी टू x प्लस सी टी होती है। हाँ हाँ। तो ये डिफरेंट केसेस के लिए, जैसे ये फिफ्थ के लिए नहीं x माइनस देखो, सी टी x से माइनस 8 सी तक टी से कैसे। लेके x प्लस सी टी के बीच में होती है, पर देखो ना वो x माइनस सी टी से लेके x प्लस सी टी के बीच में होगा साई, है ना, साई की वैल्यू, बट उसने जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा कि साई जो h है ये कब है, माइनस ए और प्लस ए के बीच में ये नॉन जीरो है, अदरवाइज ये जीरो है। अब ए तो नहीं पता ना कि ये छोटा सा भी इंटरवल हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जो आपका पॉइंट, इस पॉइंट पे सोल्यूशन होगा एक्स टी पे, वो किस पे डिपेंड करता है, एक्स माइनस सी टी से लेके एक्स प्लस सी टी के बीच में। तो हमने पॉसिबिलिटी देखी है कि जो माइनस ए और जो रीजन है वो कैसे है, एक्स माइनस सी टी उसके अंदर है, एक्स माइनस सी टी बाहर है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, तो माइनस ए के लेफ्ट में कुछ है, मतलब ये पॉसिबिलिटी डिस्कस करी है हमने सारी। ये डाटा है ना आपका, माइनस ए टू ए इसमें है। अब x माइनस सी टी और x प्लस दोनों इधर भी हो सकते हैं, ये कह लो कि आपका इंटरवल बहुत छोटा है, इधर दोनों हो सकते हैं, एक इधर है एक इधर है, ठीक है, और एक इधर है और एक इधर भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, एक इधर है एक इधर है, दोनों ही इधर हैं, ये पॉसिबिलिटी लिखी है सारी, 6 पॉसिबिलिटी नहीं। देखिए अगर ये इंटरवल लार्ज एनफ है, ये मतलब लोकल इंफॉर्मेशन है एक्स माइनस सी टी, अगर ये लार्ज एनफ इंटरवल है फिर तो उसके अंदर ही रहेगा, फिर तो कह लो कि आप ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये वाली। बट अगर इंटरवल ये बहुत ही छोटा होगा तो अब हमें नहीं पता ना कि ये माइनस ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी डिस्कस करी है लेफ्ट राइट में, नहीं यस सर। ले सकते हो ना पॉसिबिलिटी, क्योंकि लोकल इंफॉर्मेशन है ये, आप सोल्यूशन इस पॉइंट पे निकाल रहे हो, वो कहता है कि इससे ये इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है सोल्यूशन, ठीक है। अब आपने आपका इनिशियल डाटा है, मान लो वो ये है, अंदर भी हो सकता है, आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी ये पॉसिबिलिटी डिस्कस करी है, क्योंकि ए एक्स और टी पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, वो फिक्स है, देखो एच एच है माइनस ए और ए पे, वो एक्स और टी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, कांस्टेंट है वो, एंड दैट कांस्टेंट कैन टेक एनी वैल्यू, दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड पॉसिबिलिटी। ओके सो टाइम इज ओवर, आई स्टॉप नाउ, इसको पढ़ना, एंड इन द बिगनिंग ऑफ लेक्चर वी विल डिस्कस, जो मैंने बीच में एक दो पॉइंट छोड़े हैं छोटे छोटे हैं, कि अगर आपका डाटा इवन है तो सॉल्यूशन भी आपका इवन होगा, डाटा ऑड है तो सॉल्यूशन भी आपका ऑड होगा। ओके सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। आल्सो आई विल, ओके